Hi guys, I welcome you all to Insight SS YouTube channel. I'm Vishali and today we are going to discuss the defense current affairs. This section is one of the most important section when it comes to UPSC examinations, specifically CDS and NDA. Also, in case you're giving CAPF examination, it is of equal, marking, and the lot of questions that we see are of particular section when it comes to defense. For example, the first section is usually defense exercises that had been in news lately, like 4 to 5 ones are the most important ones, and talking about a year or so is usually asked, but I will suggest doing last 4 to 5 months. That will be of a great use to you. Okay, moving on to the second thing. Any missile system that had been test fire lately, that is a thing that comes up. What you need to learn in this is the first thing, range of that particular missile system, what kind of missile it is. Okay, these are the things. Then any new inductions or any of the INS and all, so if they had been in news, so that is the kind of questions that they tend to ask. तो ऐसे questions हैं that we need to focus on and we need to majorly cover, and we will be covering all of these in this particular video. So let us, without wasting any more time, jump right into the video. So the first thing that I wish to discuss with you guys is going to be the recent exercises that have been in news. Fine. So start करते हैं. The first exercise that had been there is winter camp. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पे. We need to focus majorly on the exercises that are with India. Okay, whether it is a bilateral, trilateral, multilateral. अब इसके मतलब समझा देती हूँ. Bilateral, ठीक है. Bilateral का क्या मतलब है? 2 countries involved हैं. ओके जैसे कि आगे आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे, मैं उसमें आपको बता दूंगी कौन सी बायलेटरल है, कौन सी ट्राइलेटरल है. ठीक है. देन ट्राई मीन्स 3. ओके, इफ द 3 countries had been there, then it's trilateral. Multilateral मतलब बहुत सारी countries, like this is a multilateral exercise, this is also a multilateral exercise. Fine. So जो ऐसी वाली exercises होती है ना, इसमें usually वो questions नहीं पूछते हैं regarding which countries were there, because a lot of countries are there, but in case of any bilateral, trilateral, they tend to ask. ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान देना है. Moving on to the next important thing, एडिशन बहुत ज़रूरी है. कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जो काफ़ी फेमस है एंड स्पेसिफिकली इंडिया की है, मतलब इंडिया के साथ किसी और नेशन की है, सो दे टेंड टू आस्क कि कौन सा एडिशन है, जैसे 5th एडिशन है या 6th एडिशन है. ठीक है, फिर पूछ लेते हैं लोकेशन क्या रही है. स्पेसिफिकली अगेन टेलिंग यू, अगर लोकेशन वाला क्वेश्चन आता है, लोकेशन वाले यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं आपके किसी भी गल्फ के, जैसे गल्फ ऑफ ओमान है. ठीक है, इस टाइप के जो अगर एरियाज रहते हैं गल्फ वाले, वो वाली लोकेशंस आती हैं यूजुअली मिडल ईस्ट. ठीक है. देन कौन सी आपकी शिप थी, जैसे कि INS हंसा थी, या कौन से आपके एयरक्राफ्ट थे जैसे तेजस थे. So these are the type of questions they ask when it comes to exercises. I have tried to cover all these sections majorly so that you don't have to go and find it out through the books and the newspapers. So please make sure that you revise whatever I'm telling you here. Starting with the first one, that is winter camp. So इसमें countries जो थी सारी North Atlantic Treaty Organization की जितनी भी countries हैं NATO की, they were there. Okay, NATO had been in news quite a lot lately. Why? I hope आपको पता होगा, यूक्रेन इशू चल रहा था. So इसके टाइम पे NATO का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है, isn't it? So yes, this was in news. मतलब of course there had been a few political statements that were made out. So उस perspective से NATO had been in news. So I want you to learn, पहली बात, headquarter NATO का कहाँ है. Second thing, कौन कौन सी countries हैं जो कि NATO में हैं. So these are things that you need to learn. Fine. Defense forces कौन सी include थी, Air Force, Army, Navy, इस तरीके से. ठीक है. So it was a military exercise जो कि कहाँ पर हुई है, नॉर्थ ईस्ट एस्टोनिया में. इसमें इंडिया नहीं है, so इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये. Exercise Cobra Warrior 2022, India had been there, so it's important. इसमें कौन कौन सी countries हैं, इसमें इंडिया, UK, US, सऊदी अरेबिया, स्वीडन एंड बेल्जियम है. इसमें एयरफोर्स जो थी दैट वाज बेसिकली अ पार्ट. ठीक है, सो ये कौन सी हुई, अपनी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एंड इट वाज एट वेडिंगटन UK. और हमारे खुद के जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस काफ़ी बार पूछ लेते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट इट इज़. इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ओके,
So 5 हमारे तेजस थे that were also there in this exercise. Moving on to the next one, that is Milan 2022. This is also quite important. ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज थी. सो इट वॉज अ नेवल एक्सरसाइज. इंडियन नेवी जो है वो इसमें थी. एंड उसके अलावा बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया. सो यू सी दीज कंट्रीज, दीज आर मेजरली विच कंट्रीज, दीज आर एशियन, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो वाली कंट्रीज हैं इसके अंदर. ठीक है, सो थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा. उसके अलावा कुछ एडिशनल हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान है और आपका यूएस है. इसको आप क्वाड की तरह याद कर सकते हैं. You can learn these as coordinations, right, with India if we involve. And it was at Visakhapatnam. Now, as I told you कि आपके editions भी बहुत ज़रूरी हैं. So, जो exercise Cobra Warrior 2022 हुई है, ये इसका 6th edition था. ओके, एंड जो मिलान 2022 हुआ है, इसका कौन सा एडिशन था? दिस वॉज द 11th एडिशन. ठीक है, थीम भी ज़रूरी है. सो थीम क्या था? थीम था कॉमराडरी, ठीक है, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज कब हुई थी, इट वॉज इन 1995 एंड वॉज एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, एंड इट इज होस्टेड बायनली विद द फ्रेंडली नेवीज. ठीक है, सो नेवल एक्सरसाइज है. ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज इसे स्टार मार्क कर लो. ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो आपका नॉर्थ ईस्ट एस्टोनिया है, इधर जो ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी, इट वॉज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रशियन बॉर्डर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज धर्मा गार्जन 2022. सो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया एंड जापान. देखो, दिस इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज. वाई? बिकॉज देर आर 2 countries आर देयर, राइट? सो बायलेटरल एक्सरसाइज एंड इसमें इंडियन मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व थी. कहाँ हुआ है ये? बेलगांव में हुआ है, इन कर्नाटका. ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू नो. एडिशन कौन सा है? द एडिशन हैड बीन द 3rd one, so 3rd edition. नेक्स्ट इज सी ड्रैगन. सी ड्रैगन फिर से मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ना? यू कैन सी लॉट ऑफ नेशंस. सो कौन कौन से? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. ये कौन सी हो गई हमारी? क्वाड कंट्रीज. इसको तो डायरेक्टली याद कर लिया करो. क्वाड प्लस कनाडा, साउथ कोरिया, खत्म. ठीक है, सो याद हो गया. नेक्स्ट इज कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है. कहाँ पे हुई है? इंडो पैसिफिक रीजन में इट वाज देयर. ठीक है, अगर हम बात करें, सो इसका जो मेन एम था, दिस इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर. एम जो था दैट वाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड इट वाज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड यू ऑल नो इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए अपना काफ़ी प्रोमिनेंट मतलब स्टैंड लेना चाहता है बिकॉज ऑफ द चाइनीज, राइट? सो येस, इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक. आजकल जो यूएस का है, काफ़ी ज़्यादा क्वाड की तरफ, इंडो पैसिफिक एरिया की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, सो दैट दे कैन एक्चुअली होल्ड ऑन टू इंडो पैसिफिक एरिया वेरी नाइसली. ओके, एंड चाइना को काउंटर कर सके किसी भी परस्पेक्टिव से. ठीक है, बिकॉज यू नो साउथ चाइना सी में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स इट्स प्रोमिनेंस इन द वर्ल्ड, सो इट इज कैरिंग आउट लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस विद द कोऑर्डिनेशंस. Next is maritime partnership exercise. So the countries here are India and Japan again. It is a bilateral exercise. Okay, and इसमें नेवी है, बे ऑफ बंगाल में हुआ था. नाउ एज आई टोल्ड कि शिप्स भी इंपॉर्टेंट होती है. सो कौन कौन सी शिप्स थी? INS शिवालिक थी और INS कादमात 11. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चीरू 2022. इसमें रशिया, चाइना, ईरान नेवल एक्सरसाइज गल्फ ऑफ ओमान में होस्ट की गई थी. ठीक है, इसमें अब इंडिया जैसे नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल रशिया एंड चाइना है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज इक्यूबरन 21. कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया एंड मालदीव्स. इसमें इंडियन मिलिट्री, इसमें इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स की जो मिलिट्री है वो इसमें थे. ठीक है, इस एक्सरसाइज में उन्होंने पार्ट लिया है. एंड लोकेशन जो है दैट हैड बीन द आइलैंड्स इन मालदीव्स, दैट इज कद्दू आइलैंड. ठीक है, नेक्स्ट इज पेनेक्स 21. इसमें सारी बिम्स्टेक कंट्रीज थी. डिफेंस फोर्स मतलब कौन सी अपने तरफ से कौन था? इंडियन आर्मी की थी. ये बेसिकली आर्मी एक्सरसाइज है. लोकेशन वॉज इन पुणे. नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि बिम्स्टेक जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं. ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में?
ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज जुल्फकार, ये जो है ईरान के साथ होस्ट की गई है, ठीक है। और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो इंडिया की जो नेवी एंड एयरफोर्स है उसने पार्टिसिपेट किया है इन द ईस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आई गेस यू ऑल नो अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। सो जो ईस्टर्न पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, वहाँ पे ये होस्ट की गई थी, ठीक है। लोकेशन एग्जैक्ट की बात करें तो गल्फ ऑफ ओमान में इट वॉज होस्टेड, ठीक है। एज वी नो कि जितने स्ट्रेट्स है यहाँ से ऑलमोस्ट 20% ऑयल शिपिंग जो है वो पास होती है गल्फ ऑफ ओमान से, राइट, एंड इंडियन ओशन से। सो वी नो अबाउट पायरेट्स एंड एक्टिविटीज, सो उनके अगेंस्ट मतलब to have a proper exercise to know कि what all equipments to use etc. So basically exercise उसी के लिए host की गई है, so that we can अगर ऐसे कोई भी circumstances आते हैं तो उसे fight back कैसे करना है. So Iran, and if I talk about defense forces, so military, navy और air force तीनों, मतलब army, navy, air force का इसमें involvement था. Specifically इंडिया की बात करें तो सिर्फ navy और air force, ठीक है. एक्सरसाइज शक्ति 2021 ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है, और इंडियन नेवी जो है दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट. इट वॉज होस्टेड एट फ्रेजस, फ्रांस, ठीक है। और इसका जो मेन फोकस था दैट वॉज टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म को काउंटर करना वॉज द मेन थिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉरपैट. कॉरपैट की जो फुल फॉर्म है दैट यू आर गोइंग टू टेल मी बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉरपैट की फुल फॉर्म क्या है आप बताएंगे मुझे. नेक्स्ट इज कि ये किन कंट्रीज के बीच में था. इंडिया थाईलैंड के बीच में हुआ है, और कॉरपैट बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होता है. हमें पता कैसे चलता है, बाय विच शिप वॉज देयर, या फिर एम क्या था उसके थ्रू पता चलता है कि कौन सी वाली कॉरपैट थी, ठीक है. सो इंडिया नेवी के बीच में था. डिफेंस फोर्सेस कौन सी हैं, तो इंडिया की जो नेवी है उसने पार्टिसिपेट किया. इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज. इट वॉज एट इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन, वहाँ पे ये जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ होस्ट हुई थी, एंड इंडियन INS कारमुक वॉज अ पार्ट ऑफ इट. Next is Eastern Bridge 6. Okay, talking about Eastern Bridge 6, ये इसका 6th edition था. very very important. Okay, इंडिया और ओमान जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. इंडियन एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने पार्टिसिपेट किया. इट इज़ एन एयरफोर्स एक्सरसाइज, okay, and it was hosted at Air Force Station Jodhpur. If I talk about the arms, तो MiG-29 और C-17 जो है उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है. एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट MiG-29 ने किसी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है. इससे पहले कभी भी MiG-29 ने किसी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया है. सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम, henceforth क्वाइट अ लॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सिटमैक्स, ठीक है. सिटमैक्स जो है वो किसके बीच में हुई है, देखो सिटमैक्स कैसे याद रख सकते हो. S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड, ओके. सो किन किन के बीच में हुई है ये, एक्चुअली इट्स अ नेवल एक्सरसाइज. सो इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड नेवी के बीच में हुई है. लोकेशन वॉज अंडमान सी. और INS कारमुक जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है. इट्स रिटन लाइक INS कारमुक. सो INS कारमुक जो है इट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज सागर शक्ति एक्सरसाइज जो है ये इंडियन, मतलब जैसे इंडिया के ही जो हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब ने मिलके ये एक्सरसाइज की है. इट वॉज होस्टेड एट कच्छ पेनिनसुला. कच्छ कहाँ है आप सब लोग जानते हैं, गुजरात में, राइट. सो यहाँ पर ये होस्ट हुई है. नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज दोस्ती. इट वॉज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मोल्डीव्स. जो कोस्ट गार्ड फोर्स है वो इसमें थे, एंड लोकेशन वॉज मोल्डीव्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट आर्म्स, तो ICGS वज्र, अपूर्व एंड सुरक्षा ये इसमें थे, ठीक है. उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज प्रोजेक्ट P71. तो आप जैसा जानते होंगे कि INS वेला जो है, जो एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है. और ये अब इंडिया की, मतलब इट्स बेसिकली इंडिजिनस, ठीक है. तो अभी ये कमीशन हुई है, और ये अपने आप में 4th इंडिजिनस सबमरीन है जो कि कमीशन हुई है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. और 3 ऑलरेडी वर्किंग में है, एंड अभी ये 4th एडअप हुई है, और जो आपकी 5th वाली वो ट्रायल्स में चल रही है, ठीक है. और ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. आई बीन डिस्कसिंग दिस सिंस CDS 21, ठीक है, बिकॉज हर साल एक एक एडअप हो रही हैं. सो आई वॉन्ट यू टू नेम ऑल दीज, ओके. जैसे एक का नाम INS वेला है, तो औरों के क्या नाम है आप मुझे बताएंगे. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति. ये जो है इंडिया और श्रीलंका, मतलब ये मित्र हैं 2 देश.
So Sri Lanka, as you know, that is somewhere here, right, on the southern part of India. So between India and Sri Lanka, it's a military exercise and was at combat training school in Sri Lanka. ठीक है, इसका एडिशन कौन सा था? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इसका 8th एडिशन था इस बार. ओके, नेक्स्ट इज ZIMEX 21. देखो, J for Japan. So ZIMEX is Japan and India. और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है होस्टेड इन अरेबियन सी. और इसका भी कौन सा एडिशन था ये? This was the 5th edition of this particular exercise. Okay, moving on to the next one, that is Ajay Warrior. It was between India and United Kingdom और ये इसका 6th edition था. ठीक है, इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज. एंड और ये होस्ट कहाँ की गई थी? सो लोकेशन, ये सॉरी इट इज़ रॉन्ग. इट वॉज बेसिकली कमेंस्ड एट चौबाटिया इन उत्तराखंड. ठीक है, कब होस्ट हुआ था ये? दिस वॉज होस्टेड ऑन 9th of October 2021. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट वन इज मालाबार एक्सरसाइज. एज यू नो, ये क्वाड के बीच में होता है. ठीक है, सो मालाबार एक्सरसाइज जो है दैट वाज होस्टेड एट बे ऑफ बंगाल. ओके, एंड जो मालाबार एक्सरसाइज है इट इज़ बीइंग होस्टेड सिंस 1992. तो 1992 से जो इंडिया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सिंस इट्स कमेंसमेंट इटसेल्फ. ठीक है, एंड इट वाज इनिशियली बिटवीन इंडो एंड यूएस नेवी. ठीक है, सो नेवी यूज टू पार्टिसिपेट, दैट इज इंडिया एंड यूएस की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती थी. अब धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन की बन चुकी है. और इस बार जो इसका फर्स्ट फेज हुआ था, ठीक है, तो यूजुअली कहाँ पर होती है? दिस इज इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ये होस्ट की जाती है जनरली. अब फर्स्ट इसका जो फेज हुआ था इस बार, दिस वॉज एट फिलीपीन सी. ठीक है, तो फिलीपीन सी जो है वहाँ पे इसे होस्ट किया गया था. कब की बात है ये? इट वॉज इन अगस्त. ओके, एंड जब अगर हम बात करें कि अक्टूबर में जो ये होस्ट हुई थी दैट वॉज इन बे ऑफ बंगाल. ओके, बस इतना याद रखना है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 21. सो ये हुआ था इंडिया एंड यूएस के बीच में. इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज. और ये कहाँ पर होस्ट की गई थी? इट वॉज एट जॉइंट बेस ऑफ एल्मेंडोर्फ रिहाड्रसन इन अलास्का. ओके, इसका 17th एडिशन था. ओके, 14 डेज की ये एक्सरसाइज थी. और इसका जो मेन पर्पज था दैट वॉज काउंटर टेररिज्म. ओके, ये फर्स्ट टाइम जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? इट वॉज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 2004. ठीक है, और ये क्या है? दिस इज बेसिकली इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. ओके, नेक्स्ट वन बीइंग कोंकण शक्ति 21. इसमें इंडिया, यूके, रशिया एंड यूएस थे. ठीक है, ये कौन सी है? नेवल और एयरफोर्स की कंबाइंड एक एक्सरसाइज है. लोकेशन दिस टाइम वॉज मुंबई. एंड हमारे खुद के MiG-29 जो कि इंडियन नेवी के हैं एंड एयरफोर्स के Su-30 एंड जैगवार, दे वर पार्ट ऑफ कोंकण शक्ति 21. टॉक विद द नेक्स्ट वन दैट इज सिम्बेक्स. ठीक है, जो सिम्बेक्स है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है. एंड इसमें डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो ये इंडियन नेवी जो थी वो इन्वॉल्व थी, दैट इज इंडियन एंड सिंगापुर नेवी. और ये होस्ट हुआ था नियर साउथ चाइना सी, जो साउथ फ्रिंजेस हैं, मतलब सदर्न पार्ट है जो आपका साउथ चाइना सी का वहाँ पर था. एंड हमारी कंट्री के जो हैं दैट इज INS रणविजय, INS किल्टन, INS कोरा एंड PHI एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है सिम्बेक्स में. ठीक है, सिम्बेक्स का ये 28th एडिशन था. ठीक है, एंड इट इज़ अ बायलेटरल एक्सरसाइज. यू गाइस कैन सी इंडिया एंड सिंगापुर, राइट. नेक्स्ट इज सूर्य किरण. तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है. ठीक है, और ये होस्ट कहाँ पे की गई थी? इट इज़ बेसिकली होस्टेड इन नेपाल इटसेल्फ. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट समुद्र शक्ति 21, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होस्ट हुई थी. ठीक है, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है. लोकेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समुद्र शक्ति को प्लीज स्टार मार्क कर लेना, गुड चांसेस की ये एग्जाम में आएगी. सो ये कहाँ पर था? सुंदर स्ट्रेट में था. और आर्म्स कौन सी हैं? शिवालिक और कादमत, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है. समुद्र शक्ति का कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था. ठीक है, और सूर्यकिरण का भी बता देती हूँ. इट वॉज सूर्यकिरण 15th एडिशन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में हुई थी. उसका क्या नाम था? ऑस इंडेक्स. देखो, इससे याद कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज. ओके, सो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में हुई. ओके, इसका नाम क्या है? ऑस इंडेक्स 21.
नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट की गई है बाय रशिया और कहाँ पे, निजनी में, और इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया था बहुत सारी कंट्रीज ने किया था और इंडिया भी इसका पार्ट थी। इसका क्या नाम है, जापड, ठीक है, जापड 2021। ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ओके, और रशिया ने होस्ट की है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। नेक्स्ट इज इस बार इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, कैजेंड, ठीक है। कैज स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, IND स्टैंड्स फॉर इंडिया। इसका 5th एडिशन था, आयशा बीबी में ये होस्ट किया गया है, ओके। सो नाम पूछ लेंगे कि क्या है या फिर कौन सी कंट्री जो थी इसमें इन्वॉल्व थी, एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी या फिर एयरफोर्स, आर्मी, ऐसे पूछ लेते हैं। एडिशन कौन सा था, यू शुड नो दिस, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है, दैट इज प्लान टू बी इंडक्टेड 2022 में, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इट कैन बी लाइक फर्स्ट इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट है जो इंडिया बनाने वाला है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ इट, एंड इट इज गोइंग टू बी inducted in our defense forces in August 2022, तो उसका क्या नाम है? So the answer will be IAC विक्रांत, ठीक है। Moving on to the next question, that is DRDO ने successfully flight test किया है MPATGM को, ठीक है। MPATGM क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देखो, इट इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो आज तक जितनी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं यूजुअली पोर्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी वेरी हैवी ऑल्सो। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज गुड अबाउट इट, दैट इट इज मैन पोर्टेबल, ठीक है। और इसकी अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें, सो द मैक्सिमम रेंज जो है दैट इज 2.5 किलोमीटर्स। ये क्या है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं, ठीक है, इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि ये क्या है, सो यू शुड ऑल्सो नो दिस। मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट इट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगर टाइप पूछी जाती है सो इट इज दिस, और दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फायर एंड फॉरगेट। अच्छा, फायर एंड फॉरगेट कौन से वाले हैं, 3rd जनरेशन नाग मिसाइल्स है ना। सो नाग ATGM जो है उससे इसको डिराइव किया गया है एंड दे आर 3rd जनरेशन, ओके। दिस इज वॉट यू नीड टू नो। फायर एंड फॉरगेट इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मैक्सिमम रेंज इसकी याद कर लेना, क्या है, किस टाइप में है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, किसने फ्लाइट टेस्ट किए हैं, DRDO ने किए हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कंट्री जो कि ब्रह्मोस खरीदने वाली हैं फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वो कौन सी कंट्री है। सो द आंसर फॉर द सेम इज फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस जो है ये इंडिया से ब्रह्मोस खरीदने वाली हैं, ठीक है। और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डील, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस हार्डवेयर, ओके। सो इंडिया का एक एम है, गोल है दैट इट ऑल्सो बिकम्स अ डिफेंस एक्सपोर्टर, सो उस एम को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन नेवी ने अपना फाइनल दैट इज द 12th P8I जो एयरक्राफ्ट है बोइंग से वो रिसीव कर लिया है। ये क्या है, ये एक्चुअली एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, मींस सबमरीन से फायर आउट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ओके। सो इंडियन नेवी ने फाइनली से रिसीव किया है एंड इट इज द फाइनल वन, ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एयरक्राफ्ट हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं। देखो बोइंग कौन से कंट्री का है, इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो अगर पूछा जाए सो हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं, हमने USA से लिए हैं। किस टाइप के एयरक्राफ्ट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इस पे ध्यान देना। इनिशियली 2009 में क्या हुआ था, 8 एयरक्राफ्ट की डील की गई थी, ठीक है। सो इंडिया जो था इस टाइम पे फर्स्ट कंट्री बना था जिसने P8I जो एयरक्राफ्ट से उन्हें बाय किया था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े चेंजेस हुए थे इन 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और हमने 4 और एयरक्राफ्ट की डिमांड की, ओके। सो अब जो 4 और एयरक्राफ्ट मिला के टोटल कितने हो गए अपने, 12 एयरक्राफ्ट। सो फाइनली ये 4 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर कर दिए गए हैं, ओके। एंड फाइनली वी हैव हाउ मेनी एयरक्राफ्ट, 12 एयरक्राफ्ट, ओके। अब एक और क्वेश्चन, ये मैं ऑलरेडी आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इन द पार्ट्स जो हम अपनी सीरीज चलाते हैं, राइट, करंट अफेयर्स की। सो आई जस्ट वांट कि वो एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो एशिया का जो लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो है जो कि होने वाला है 2022 में, वो कहाँ होगा। तो इसका आंसर क्या है, गांधीनगर। आई गेस आप लोगों को याद होगा बिकॉज दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। सिंगापुर में अभी एयर शो था। सो हमारे कौन से जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने सिंगापुर एयर शो में परफॉर्म किया है, द आंसर फॉर द सेम इज तेजस, ओके।
अब एक और चीज़ है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू डिफेंस बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑपरेशन AAHT ये हुआ है, ठीक है, ये किसने किया है और क्यों किया है? सो ये किया गया है बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, और ये किस वजह से किया गया है? इट हैज़ बीन डन बिकॉज ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है रेलवेज़ के थ्रू, यू नो, राइट? सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को किया गया। सो टू कर्ब द ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिस ऑपरेशन वाज देयर, ओके। अब नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका क्या नाम है? उनका नाम है GAV रेड्डी, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनको वापस लाया जा सके इंडिया में? ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेशन गंगा, ठीक है, याद रखना है ऑपरेशन गंगा। और इसके थ्रू हम उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि वाया पोलैंड, ओके, रोमेनिया, स्लोवाकिया, ठीक है, इवन हंगरी, यहाँ से हम वापस लेके आए हैं किनको? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि 7 आर्मी पर्सनल्स जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ ड्यू टू एवलांच, ठीक है, वहाँ पे एक स्टेट में लूज़ की अपनी लाइफ। सो वो कौन सा स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये इंसिडेंट हुआ था, okay, where our 7 army personals have lost their lives due to avalanche, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन दैट इज SMAT। अब इसकी फुल फॉर्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकता है। SMAT क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम, ठीक है, ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली बाय इंडिया। कहाँ पे? तो ये लॉन्च किया गया है एट अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, इसका दूसरा नाम व्हीलर आइलैंड भी है, आपने काफ़ी बार सुना होगा, एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। ये कहाँ पर हैं? ये वाले जो आइलैंड्स हैं आपने देखा होगा जितनी भी टेस्ट फायरिंग होती है यूजुअली अब्दुल कलाम आइलैंड के थ्रू ही होती है, राइट? सो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये एक्चुअली बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे 5 आइलैंड्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये 5 आइलैंड्स हैं इन बे ऑफ बंगाल एंड इट्स वेरी नियर टू द उड़ीसा कोस्ट। तो यहाँ से टेस्ट फायर किया जाता है यूजुअली, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज VLSR सैम। सैम जो है इसकी फुल फॉर्म बताती हुई मैं आपको, ये इंडिजिनसली डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय DRDO फॉर इंडियन नेवी। ये क्या है? ठीक है, जो सैम है दैट इज फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, और SR जो है दिस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज, ओके, और VL क्या है? VL है आपका वर्टिकल लॉन्च, फाइन। सो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, ओके। इसका जो मेन काम है दैट इज कि वो न्यूट्रलाइज कर सके जितने भी एरियल थ्रेट्स हैं उनको, ठीक है, और इसकी जो रेंज है दैट इज ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर्स, ओके, इतना आपको बस याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज हीट अभ्यास, ओके। सो हीट अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, सो हीट जो है दिस स्टैंड्स फॉर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट्स, ठीक है, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म है। एंड ये अभी रिसेंटली DRDO ने टेस्ट की है। वेयर एग्जैक्टली इट वॉज टेस्टेड? इट वॉज टेस्टेड इन चंदीपुर। चंदीपुर कहाँ है? दिस इज ऑल्सो नियर उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, बस इतना सा आप देख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी रिसेंटली एक मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन जिसका नाम है MARG 155BR, उसको क्या किया है? अनवेल किया है, ठीक है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, ये क्या है? ये एक आर्टिलरी गन है, पहली बात जो आपको पता होना चाहिए, दे लास्ट लाइक MARG 155BR, ये क्या है? सो इट इज़ एन आर्टिलरी गन। ये किसने मैन्युफैक्चर किया है या डेवलप किसने किया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय फौज लिमिटेड, भारत फौज लिमिटेड, ठीक है। इसकी अगर कैपेसिटी की हम बात करते हैं, सो पहली बात ये 155 mm की जो आपकी आर्टिलरी गन है, और इसकी जो कैलिबर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 39 कैलिबर की ये गन है, ठीक है, और राजनाथ सिंह ने भी रिसेंटली इसे अनवेल किया था,
ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, ताकि वो रिप्लेस कर सके अपना आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन। और जो ये अब रिसेंटली एप्लीकेशन लॉन्च किया उसका क्या नाम है? इसका नाम है असिग्मा। असिग्मा की फुल फॉर्म जो है वो ये है, आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसमें एबिलिटी है कि वो डिफीट कर सके इंटरसेप्टर मिसाइल को और अपना इवन पाथ चेंज कर सकती है मिड एयर के अंदर। वो अभी डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, उसका क्या नाम है? जो इसका नाम है दैट इज प्रलय, ठीक है। अब देखो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे किया गया है ये भी पता होना चाहिए। इट वॉज टेस्टेड एट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अभी हमने डिस्कस भी किया था, राइट? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, तो ये भी वहीं पे टेस्ट फायर की गई है। ओके, सो प्रलय हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड हियर। द बेस्ट पार्ट इज कि इसको हम मोबाइल लॉन्चर के थ्रू जो है लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो गाइडेंस है इस पर्टिकुलर मिसाइल की, दैट इज थ्रू आर्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ काफ़ी बार रेंज पूछ ली जाती है, सो यू शुड ऑलवेज नो द रेंज ऑफ ऑल द मिसाइल्स दैट यू आर स्टडिंग, ठीक है। तो जो प्रलय मिसाइल है, अगर इसकी रेंज की हम बात करते हैं, दैट इज नियर अबाउट 150 से 500 किलोमीटर्स, ये इसकी रेंज है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है रेंज वाला, सो यू शुड नो दिस। एंड कभी कभी मैक्सिमम स्पीड भी पूछ लेते हैं। सो इसकी जो टर्मिनल फेज पे जो इसकी स्पीड है दैट इज मैक्स 6, तो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। ओके, moving on to the next question, that is the chief of army staff who has taken over chairman of the chiefs of staff committee, that is COSC, following the death of CDS बिपिन रावत। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, राइट? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ पहले आपसे। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं, यू ऑल नो कौन है जिन्होंने अब रिप्लेस किया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को एज चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी? द आंसर इज जनरल MM नरवाने, ठीक है। और ये किस बेस पे किया जाता है? जितने भी आपके डिफेंस के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, सो ऑफ कोर्स दे बिकम द चीफ्स, राइट? केपेबल प्लस द सीनियर मोस्ट, दे बिकम द चीफ, इजंट इट? सो अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा सर्विस वाले हैं, मतलब जिनकी सबसे ज़्यादा सर्विस है, दैट पर्सन बिकम्स द COSC, दैट इज द बेसिस ऑन विच the COSC is chosen. Okay, so the answer will be General MM Nirvane. Okay, moving on to the next one, that is Quanmu, जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट है जो कि सर्व करने वाली है यूनाइटेड नेशन को टू अटेन इट्स 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? सो द आंसर इज चाइना। चाइना ने इसे लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया है बाय कैरियर रॉकेट, जिसका नाम क्या है? मार्च 6, ठीक है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। द नेक्स्ट वन इज एडमिरल R हरि कुमार, जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज द स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन जो किया गया है बाय इंडियन नेवी, उसका नाम क्या है? The answer for the same is INS विशाखापट्टनम। ओके, और इसी से रिलेटेड मैंने अभी आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, दैट वाज रिलेटेड टू ब्रह्मोस, इफ़ यू रिमेंबर इट वाज डेल्ट ड्यूरिंग द करंट अफेयर्स सीरीज। सो आप उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली वाज द डिस्कशन अबाउट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ नेपाल आर्मी, उनको दिया गया है ऑनरी रैंक as General of Indian Army by our own President, that is Shri Ramnath Kovind. Okay, तो उनका नाम क्या है? So he is actually the Chief of Army Staff of Nepal Army, और इनको अब दिया गया है as you know, मतलब we give the honorary rank to the people. So इनका नाम क्या है? That is General Prabhu Ram Sharma. Okay, remember this, it's very very important. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर की गई है फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। तो ये क्या है? ये अग्नि 5 जो है, दिस इज ICBM। ICBM क्या है? न्यूक्लियर केपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM की फुल फॉर्म क्या होती है?
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एंड ये क्या है अग्नि 5? ये एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, ओके ये आपको याद रखना होगा। और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है दैट इज अप टू 5000 किलोमीटर्स, ओके 5000 किलोमीटर्स तक है। देखो रेंज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो रेंज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, 5000 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है CDS, ओके। द नेक्स्ट वन दैट आई विश टू डिस्कस विद यू इज INS सावित्री, ठीक है। इसका क्या रोल था? INS सावित्री जो है इसने बांग्लादेश को हेल्प किया है या सपोर्ट किया है ड्यूरिंग कोविड-19 और इसको MOP सप्लाई की है। MOP क्या होता है? MOP स्टैंड्स फॉर मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। Now coming to the last and one of the most important things, that is the missile system. Prithvi, Akash, Nag, Trishul, Agni. These are the missile systems that we have. Now there are various type of missile systems on the basis of their ranges. ठीक है, ऊपर से क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, इसके बेसिस पे भी होता है, ठीक है। सो कभी भी अगर आता है नाग क्या है, वो एक एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट है, इस तरीके से याद रखना। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड व्हेन इट कम्स टू Nag missile, okay. Then coming to the Prithvi, Akash, Trishul, Agni, you should know about their ranges, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, ठीक है, शॉर्ट रेंज है, इंटरमीडिएट रेंज है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि सरफेस टू एयर है या सरफेस से सरफेस पे है, ठीक है, एयर टू सरफेस है, इसके बेसिस पे भी होता है। सो जैसे पृथ्वी है सरफेस टू सरफेस है, मतलब सरफेस से हम इसको फायर करेंगे एंड ये जाके हिट भी सरफेस पे करेगा, ओके। आकाश जो है दैट इज सरफेस टू एयर, जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसको अगर आपको टारगेट करना है सो सरफेस टू एयर। उसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ मिसाइल सिस्टम्स जो कि इवन आफ्टर फायरिंग दैट कैन चेंज द पाथ, तो उस बेसिस पे भी होता है। कुछ होते हैं जो स्टैटिक एक पाथ फॉलो करते हैं, सो वी हैव टू सी विच काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम एंड पीरियड, ओके। देन त्रिशूल की बात करते हैं तो सरफेस टू एयर है, अग्नि सरफेस टू सरफेस है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स है, एक बार प्लीज इनकी रेंजेस हम याद कर लेते हैं, ठीक है। ये पक्का पूछे जाते हैं, जैसे प्रहार है तो 150 किलोमीटर्स, आप ऐसे याद करते चले जाना, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाला बिकॉज वेन एवर वी सी थिंग्स सो वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट एंड रिमेंबर इट मोर नाइसली, ओके। सो प्रहार 150 किलोमीटर्स है, देखो इनकी रेंजेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। यहाँ तक प्रहार जा सकता है, देन सेकंड यू कैन सी, थर्ड यू कैन सी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, ठीक है, आपको नजर आ रहे होंगे ये। अब ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है, इसकी 300 किलोमीटर्स तक रेंज है, पृथ्वी की 350, अग्नि 1 700 प्लस किलोमीटर्स, निर्भय क्रूज मिसाइल है 800 प्लस किलोमीटर्स, अग्नि 2 2000 प्लस किलोमीटर्स। सो ये जो है ये इनकी रेंजेस हैं जो कि हमें याद रखनी होती है, ठीक है। मेनली पृथ्वी पूछ लेते हैं, प्रहार पूछ लेते हैं, निर्भय पूछ लेते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम दे यूजुअली आस्क, ओके। Now the next important thing is ranks. So ये देखो ये वाली जो हैं ये आपकी इंडियन नेवी की हैं और ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की हैं, प्लीज़ इन्हें एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट दे आस्क इज कि ओके इफ अ पर्सन इज कैप्टन इन इंडियन नेवी व्हाट विल ही बी इन एयरफोर्स, सो द पर्सन विल बी ग्रुप कैप्टन, ओके। और इफ इन आर्मी तो कर्नल होंगे, राइट। सो एट द सेम पॉइंट इफ वाइस एडमिरल हैं नेवी में, सो एयरफोर्स में क्या होंगे, एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे आर्मी में। So these are the equivalent rank type of questions that are asked usually in serious exam, ठीक है। ये static part में आता है। इसके अलावा एक और type of question है जो बहुत oftenly repeat होते हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे आर्मी वॉर कॉलेज जो है वो कहाँ पे है, ओके। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। इसके लिए मैं क्या करूँगी, आई विल पोस्ट दिस PDF ऑन इनसाइट SSB टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये PDF जाके वहाँ से एक्सेस कर लें और एक बार जस्ट गो थ्रू कर लें, सो दैट व्हेनेवर दिस क्वेश्चन कम अप यू आर एबल टू एटलीस्ट रिकॉग्नाइज। और एक और स्टैटिक टाइप में क्वेश्चन आता है दैट इज यूजुअली बेस्ड अपॉन कि कोई भी एयरक्राफ्ट है उसके बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कि फैल है, ठीक है, जैसे कि तेजस हैं, सो वो किस से रिलेटेड हैं। ऑल्सो एयरक्राफ्ट के अलावा दे इवन आस्क अबाउट चॉपर्स, जैसे कि चेतक है, ठीक है, ये
कौन सी कंट्री से हमने ले रखा है अगर लिया है तो, या फिर ये लोड उठाने के काम आता है या कॉम्बैट वाला है. दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे यूजुअली टेंड टू आस्क. ओके, तो हम लोग ये भी अच्छे से कवर कर लेंगे. आई विल जस्ट पोस्ट ऑल ऑफ दिस इन टेलीग्राम बिकॉज यू कैन जस्ट रीड इट आउट थ्रू PDF, राइट, एंड रिवाइज इट once. So with this, I end the Defense Current Affairs revision series. I hope it was quite useful for all of you guys. And make sure you revise it at least once or twice so that you can remember it in the examination, and all the very best for your exam. One or two parts more will come for current affairs. Please make sure that you revise the last minute revision series because it is very, very important. Thank you. All the best, and Jai Hind. Keep working smart.